Assalamu alaikum. I'm Dr. Sumbal. I hope all of you are fine and are taking all the precautionary measures. So, dear students, today we are going to study two topics, pulse and pulmonary circulation. So, let's begin our lecture with the topic of pulse. So, in this topic, we are going to know about the definition of the pulse. Then we will see the various sites where we can measure the pulse, and in the end, we would see the significance of measuring the pulse. So let's begin with the definition of the pulse. As you can see that I have written a definition here, which is a wave of distension and elongation felt in the arterial wall each time the left ventricle ejects blood into the system. So let me explain this definition with the help of this diagram. So you guys already know that heart has two sides, right side and the left side. So whenever the left ventricle contracts, it ejects blood into the aorta. From the aorta, the blood reaches the systemic arteries, and whenever the blood reaches the systemic arteries, it generates pressure on the walls of the arterial wall. This pressure generated on the arterial wall causes the distension of the arterial wall, and this distension is felt as pulse. तो क्या होता है कि जब भी हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड एओर्टा के अंदर आता है, एओर्टा से सिस्टेमिक आर्टरीज में जाता है और सिस्टेमिक आर्टरीज में ये उनकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से डिस्टेंशन होती है वॉल्स के ऊपर और हमें वो फिर क्या फील होती है एज पल्स. So, what is the normal pulse rate? As you can see, I have written 60 to 80 beats per minute. So, you guys would be wondering that normal heart rate is also 60 to 8 beats per minute. So, guys, you are right. क्योंकि जब भी हमारा हार्ट कॉन्टैक्ट करता है ये ब्लड इजेक्ट करता है एओर्टा में, जहाँ से वो सिस्टेमिक आर्टरीज में जाता है और हमें पल्स फील होती है. तो हार्ट रेट इज़ द सेम एज अ पल्स रेट इन अ नॉर्मल पर्सन. Now, if you want to take the pulse of an artery, then you will have to see for two conditions. तो वो दो conditions क्या हैं? Number one I have mentioned here is that artery must be superficial. You know, we have so many arteries in our body. Many of them are present deep inside the body. Some of them are present superficially. So it's very easy to take the pulse of those arteries which are present superficially. इसी तरह द आर्टरी जिसके आप पल्स ले रहे हैं, इट शुड बी प्रेजेंट अगेन सम हार्ड ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल बोन, बिकॉज इट्स इजी टू जेंटली प्रेस द आर्टरी अगेंस्ट अ हार्ड ऑब्जेक्ट. सो आपके लिए पल्स लेना आसान हो जाएगी. नाउ वी आर गोइंग टू सी वेरियस साइट्स वेयर वी कैन टेक द पल्स. तो अपर लिम और लोअर लिम दोनों में बहुत सी डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ पे डिफरेंट आर्टरीज हैं जिनकी आप पल्स जो है वो चेक कर सकते हैं. So, but the most common side where you can take the pulse is the wrist, and the artery which is present at the side is radial artery. इसके अलावा आप देख रहे हैं कि आई हैव मेंशन एल्बो, जहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी गुजर रही है, उसकी आप पल्स ले सकते हैं. नेक के ऊपर कैरोटिड आर्टरी है जिसकी आप पल्स ले सकते हैं. नियर द ग्रोइन एरिया देयर इज़ फेमोरल आर्टरी जिसकी आप पल्स ले सकते हैं. और बिहाइंड द नी देयर इज़ अ पोप्लीटियल फोसा, जहाँ पे पोप्लीटियल आर्टरी रन कर रही होती है, उसकी आप पल्स ले सकते हैं. नियर द एंकल जॉइंट देयर इज़ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी पासिंग, और आप उसकी पल्स ले सकते हैं. ऑन फ्रंट ऑफ द फुट देयर इज़ टोसेलिस पेडिस आर्टरी जिसकी आप पल्स ले सकते हैं. So in this diagram I have, you can see all those sides, और I have mentioned the name of the arteries also. तो आप देख सकते हैं नेक के ऊपर देयर इज़ कैरोटिड आर्टरी, एल्बो पे आप देख रहे हैं ब्रेकियल आर्टरी, रिस्ट पे देयर इज़ रेडियल आर्टरी, नियर द ग्रॉइन एरिया देयर इज़ फेमोरल आर्टरी, in the popliteal fossa there is popliteal artery, near the ankle joint there is posterior tibial artery, or in front of the foot there is tosalis pedis artery. इन डिफरेंट जगहों पे आप पल्स जो है वो चेक कर सकते हैं. Now the question arises that why do we have to take the pulse rate? तो I have mentioned 4 points here. So we are going to touch all those 4 points one by one. In the first point I have written heart rate. I have told you already that pulse rate is correlated with the heart rate. जितना भी नॉर्मली हार्ट ब्लड एजेक्ट जितने
हार्ट जब ब्लड इजेक्ट करता है वो एओर्टा में जाता है, वहाँ से सिस्टमिक आर्टरीज में जाता है और हम पल्स फील करते हैं। तो हार्ट जितनी दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतनी दफ़ा हमें पल्स फील होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी का हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एट द रेट ऑफ 70 बीट्स पर मिनट, तो हमें पल्स भी इतनी बार ही फील होगी, दैट इज़ एट द रेट ऑफ 70 बीट्स पर मिनट। तो अगर किसी का हार्ट कम कॉन्टैक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल एट द रेट ऑफ 60 बीट्स पर मिनट, तो हमें हार्ट रेट, उसकी पल्स रेट भी इसी तरह फील होगी 60 बीट्स पर मिनट। तो आप हार्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पल्स रेट। नंबर 2 पे आई हैव मेंशन रेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट। यू गाइस नो कि नॉर्मली क्या होता है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एट रेगुलर इंटरवल, हर बीट एक रेगुलर इंटरवल पे आ रही होती है इसी, और हमें पल्स भी एक रेगुलर इंटरवल पे फील हो रही होती है। तो इफ़ देयर इज़ सम इरेगुलरिटी प्रेजेंट इन द हार्ट बीट, तो हमें वो इजीली पल्स रेट की मेजरमेंट से चेक हो सकती है। नाउ इन द थर्ड पॉइंट आई हैव मेंशन द वॉल्यूम और स्ट्रेंथ ऑफ बीट। तो नॉर्मली क्या होता है कि हार्ट ejects 60 to 80 ml of blood into the aorta, and this is a very good volume of blood which reaches the distal end of systemic arteries, और ये डिस्टेंड करता है और वॉल को, और हमें पल्स फील होती है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर किसी में कोई ब्लड वॉल्यूम की कमी, फॉर एग्जांपल इफ़ सम पर्सन इज़ मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ही हैज़ लॉस्ट a huge amount of volume in that accident, तो क्या होगा कि the blood volume in the body is decreased and definitely the heart will eject less amount of blood, and that less volume of blood reaches the distal end of the systemic arteries, and क्या होगा कि हमें जो उसकी पल्स है वो बहुत वीक और फीबल सी फील होगी। सो विद द हेल्प ऑफ पल्स we can actually assess the volume of the blood as well. So on the fourth point, I have mentioned that we can assess the tension on the arterial wall also. क्या होता है कि नॉर्मली हमारी आर्टीरियल वॉल के अंदर इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी जो आर्टीरियल वॉल है इट इज़ क्वाइट एन इलास्टिक इन नेचर। बट व्हेन वी एजेस दैट इलास्टिक टिश्यू गेट्स डीजनरेटेड, और हमारी जो आर्टीरियल वॉल है वो विद एज थिक होती जाती है। यही वजह है कि अगर आप किसी नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट पर्सन की अगर आप आर्टरी मतलब उसकी पल्स लेंगे, तो आप देखेंगे कि जो उसकी आर्टीरियल वॉल है बहुत सॉफ्ट होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर आप किसी एजड बंदे में लाइक कोई अगर 80 ईयर्स का आदमी है, उसकी अगर आप पल्स फील करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो उसकी आर्टीरियल वॉल है वो आपको थोड़ी सी हार्ड फील होगी, जस्ट लाइक अ पाइप। तो क्यों हार्ड फील होगी? क्योंकि उसकी जो आर्टीरियल वॉल है इट हैज़ बिकम थिकन ड्यू टू द लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू। तो ये चार चीज़ें हैं जो हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेकिंग द पल्स। नाउ समटाइम्स क्या होता है कि द हार्ट रेट इज़ नॉर्मल, या यू कैन से कि हार्ट रेट नॉर्मल है लेकिन पल्स रेट इज़ लेस देन हार्ट रेट। किन तो कंडीशन में ऐसा हो सकता है, मैंने दो एग्जांपल्स यहाँ मेंशन किए हैं। नंबर 1 पे आई हैव रिटन ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी। क्या होता है कि इफ़ देयर इज़ अ सम ब्लॉकेज एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द आर्टरी, तो उसमें क्या होता है द ब्लड विल नॉट बी एबल टू पास थ्रू दैट ब्लॉकेज। अब क्या होता है कि हार्ट तो ऊपर नॉर्मली नॉर्मल कॉन्टैक्ट कर रहा होगा, लेकिन जो ब्लड है इट कैन नॉट पास थ्रू दैट ब्लॉकेज एंड इट विल नॉट बी एबल टू रीच द डिस्टल एंड, तो हमें द पल्स जो है वो नहीं फील हो पाएगी। तो इन दैट केस हार्ट इज रेट इज़ नॉर्मल बट द पल्स रेट वुड बी लेस देन नॉर्मल। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है? इन एनी काइंड ऑफ कार्डिक abnormality सच एज एरिथमियाज। एरिथमियाज एक ऐसी कार्डिक abnormality है जिसमें आपका कार्डिक मसल जो है वो डैमेज होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत वीक होती है। सो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विथ वीक फोर्स, तो उसमें क्या होता है कि लेस अमाउंट ऑफ द ब्लड या लेस वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज इंजेक्टेड इनटू द एओर्टा एंड इनटू द सिस्टेमिक आर्टरीज। तो क्या होता है कि समटाइम क्या होता है कि वो इतना वीक कॉन्टैक्ट करता है कि आपका ब्लड जो है वो बिल्कुल डिस्टेंट एंड तक पहुंच ही नहीं पाता। तो इन दैट केस हार्ट रेट जो है उससे पल्स रेट बहुत कम होगा। ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट नॉर्मल पल्स रेट, तो आपका हार्ट रेट से पल्स रेट बहुत कम होगा। So now we are moving towards our second topic, which is circulation. So we divide the circulation into two types, pulmonary circulation and systemic circulation. As the name indicates, pulmonary means circulation in the blood in the lungs, यानी कि movement of the blood in the lungs, और systemic का मतलब है कि movement of the blood throughout the body except the lungs. But today
we are going to study only pulmonary circulation. तो क्या होता है, एज वी ऑलरेडी नो दैट हार्ट हैज़ टू साइड्स, लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड. तो जब राइट वेंट्रिकल कांटेक्ट करता है तो ब्लड जो है वो एंटर होता है इनटू द पल्मोनरी ट्रंक. पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड मूव करता है इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज. दीज पल्मोनरी आर्टरीज आर टू इन नंबर, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी. ये आर्टरीज जो है अपने रिस्पेक्टिव साइड के लंग के अंदर एंटर होती हैं. वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, वहाँ पे फिर पल्मोनरी वेन्स बनती हैं और दोज पल्मोनरी वेन्स देन एंटर इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट. तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है बेसिकली कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो इजेक्ट होता है और एंटर होता है इनटू द लंग्स, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं, और लंग्स से भी पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट में एंटर हो रही हैं. सो ब्लड मूव्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग एंड फ्रॉम द लंग्स इट मूव्स बैक इनटू द हार्ट थ्रू left eight into the enters into the left atrium of the heart. So now I'm going to explain you this pulmonary circulation with the help of this diagram. Up you can see the picture of the heart here, and you guys know that right side of the heart has right atrium and right ventricle, and the left side of the heart has left atrium and left ventricle. और right ventricle के upper portion से क्या rise कर रहा है pulmonary trunk which enters, जो आगे बन रहा है pulmonary artery. The pulmonary arteries are basically two in number, left pulmonary artery and the right pulmonary artery. Left pulmonary artery enters into the root of the left lung and the right pulmonary artery enters into the root of the right lung. लंग के अंदर एंटर होने के बाद these pulmonary arteries are divided into arterioles, और ये जो arterioles हैं they are further divided into capillaries. कैपिलरीज वो साइट हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं. क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं? ऑक्सीजन इज़ एंटरिंग इनटू द ब्लड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एंटरिंग इनटू द लंग्स. तो बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड हो रही है. वो जो कैपिलरीज हैं जहाँ पे ये सारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं, दे फर्दर मेक वेन्यूल्स ऑन द ऑपोजिट साइड. और क्या होता है, वो वेन्यूल्स आर नाउ मेकिंग पल्मोनरी वेन्स, और दीज पल्मोनरी वेन्स नाउ आर entering into the left atrium of the heart, or they empty the blood into the left atrium of the heart. तो क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी लेके लंग्स के अंदर एंटर हो रही है, वहाँ पे कैपिलरीज बना रही है, और वो कैपिलरीज वो वाली साइट हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं, और कैपिलरीज से पल्मोनरी वेन्स बन रही हैं, एंड दीज पल्मोनरी वेन्स आर नाउ एंटरिंग इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट. और वो पल्मोनरी वेन्स एक्चुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस जो है वो हार्ट के अंदर लेकर आ रही हैं. यहाँ पे आप एक एक्सेप्शन नोट कर रहे होंगे कि नॉर्मली हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और हमारी बॉडी में जितनी भी वेन्स हैं दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट हेयर इन दिस केस ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन देयर इज़ एन एक्सेप्शन. इसमें क्या एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं दे आर कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो पल्मोनरी वेन्स हैं दे आर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आप देखें इस डायग्राम के अंदर भी जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं दे हैव बीन शोन इन ब्लू कलर. ब्लू कलर का मतलब है दे आर कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो पल्मोनरी वेन्स हैं दे हैव बीन शोन इन रेड कलर. रेड कलर शोज दे आर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये जो है हमारी सारी पल्मोनरी सर्कुलेशन है, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस सिर्फ ये है कि इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके जाना है इनटू द लंग्स, जहाँ पे ऑक्सीजनेशन होनी है, कार्बन डाइऑक्साइड ने रिमूव हो जाना है, ऑक्सीजन ने एंटर हो जाना है, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसने वापस फिर दोबारा हार्ट में ही एंटर होना है, बट ऑन द ऑपोजिट साइड यानी कि लेफ्ट एट्रियम में. वहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा, एओर्टा से सिस्टेमिक आर्टरी से भी बाकी सारे वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा. सो दिस इज़ द पल्मोनरी सर्कुलेशन, and this is also the end of the lecture. In case you don't understand any point you can ask me any question. You can write down the comments below the lecture, so I will definitely try my best to uh, answer your questions. So guys, stay at home and take care of yourself, and Khuda Hafiz.